Hallelujah. Shalom. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Glory, glory to the Lord. धन्यवाद यीशु मसीह. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. सबको जय यीशु मसीह की. Hallelujah. 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 I'm so delighted to see that people are really hungry for the Word of God. How you really long for the fresh manna that comes from the throne of God. That you really have hunger and longing for the Word of God. Hallelujah. This is amazing. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर के वचन के लिए लोगों के दिलों में भूख पैदा हो रही है और परमेश्वर सच्चे कलाम की ओर भाग रहे हैं, सच्ची हजूरी की ओर भाग रहे हैं लोग, परमेश्वर के लोग. धन्यवाद हो. हालेलुया. हालेलुया. सब मेरे संग आंखें बंद कीजिए, मिलके प्रभु के लिए गाएं. कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं. पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं. गाएं मेरे साथ. ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलवा मूजी पे तू दिलाता जा. मूजी कहते हैं एनिमी को, वैरी को, मूजी. और मुंजी कहते हैं मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को. तो मूजी और मुंजी का फर्क समझिए. गलवा मूजी पे तू दिलाता, विक्ट्री दे शैतान के ऊपर और दुश्मन के ऊपर. हालेलुया. ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलवा मूजी पे तू दिलाता जा. साथ ईमान भी बढ़ाता जा, हाथ अपने उठाए आते हैं. पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं. पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं. हालेलुया. फादर वी प्रे इन जीसस नेम. आइए हम सब प्रार्थना करें. कुछ खास प्रार्थना विनतियां हैं. एक परमेश्वर की बेटी है, उसका नाम है परिता. वो गुजरात से हैं और उसकी माता मोनिका के लिए और उनके घराने के सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि कोरोना का विशेष वायरस उनके परिवार से यीशु मसीह के नाम में निकल जाए. लॉर्ड आई प्रे फॉर मोनिका क्रिश्चियन एंड अ डॉटर परिता. Lord, I cover them all under the blood of the Lamb. I speak your blood over them. I speak healing anointing right now, Father, over them. I release healing virtue over the entire household, and I bind this vicious virus, and I charge this vicious virus in the mighty name of Jesus to leave their system and leave their bodies in Jesus' name. Lord, I pray for Devinder Kullar from Britain.
I pray for her husband. I pray for her family, Father. Bless her. I pray for Agnes Lal and her husband, Vinod Lal. Bless them, Father. I pray for Vinodini Christian from Canada. Bless her. I pray for Sahil Bhai from Pakistan for your blessing. Sonia Nar, Lord bless her. साबी सुरजीत को, उसके घराने को बरकत दे खुदावन. जसवीर सिंह सुरिंदर को बरकत दे. Lord, I pray for Prabdeep and his spouse and his father, mother. Father, I pray for Abtar Burjman from Chandigarh. Bless him. Lord, I pray for Malik Ahmed. Malik Ahmed जो कश्मीर से हैं. मलिक अहमद के लिए, उनके ख़ानदान के लिए मैं दुआ मांगता हूँ. खुदावंद उनके पूरे ख़ानदान को तेरे हजूर में उठाता हूँ. Lord, bless his family, move in his family. Let every demonic activity in their household cease in the mighty name of Jesus. तेरा खून घराने पे मैं छिड़क देता हूँ. अमरजीत कौर के लिए जलंधर से उनके परिवार को आपके खून में छिपाता हूँ, उनकी ग्रैंड डॉटर्स को आपके खून में छिपाता हूँ. Lord, I pray for Lena Davidson and her family. Bless her. Bless Renu Kumari, Lord Jesus. Bless Pastor Sandeep Kumar. Bless him, Lord, for your glory. Bless Father, I also pray for my mother Leela Devi. You saved her. Lord, you delivered her from the paws of the enemy. Lord, you rescued her by your mighty power. Hallelujah. Father, I pray for Rajat Masih. Bless him. Bless Brother Amrish Kumar, Lord. Your hand be upon him. I pray for Brother Devinder Singh from Jammu Kashmir. Bless him, Lord. Harpal Bajwa. Bless him. Bless his son, Lord. Bless his whole family. Hallelujah. I pray for Emmanuel Sohota and his family and his children. I speak your blessing and anointing and your favor. I bless Kiran Kumar Jitu. Bless him, Lord. Stretch forth your hand over him, over Brother Kundan Shah from Delhi. तेरी बरकत इन सब के ऊपर मैं खोलता हूँ. गुरप्रीत सिंह के ऊपर, गुरदीप सिंह के ऊपर, संदीप सिंह के ऊपर तेरी बरकत को, तेरी आशीष को खोलता हूँ. लॉर्ड, तेरा हाथ हो खुदावन. अपना हाथ बढ़ा खुदावन. कील से सीधा हाथ हमारे ऊपर रख खुदावन. हालेलुया. और हमें अपने रूह से भर. हालेलुया. थैंक यू जीसस. विच दुनिया दे होया परेशान, विच दुनिया दे मैं होया परेशान. सहंदी है दिने राती दुख मेरी जान. सहंदी है दिने राती दुख मेरी जान. ला किनारे तू खेवन हारे, पर रू दे नाल खाली दिल सारे. कर किरपा तू सिरजन हारे, कर किरपा तू सिरजन हारे. पर रू दे नाल खाली दिन सारे. कर किरपा तू सिरजन. खुदावंद, Lord, I release healing anointing over Dr. Krupa. May the healing anointing flow over Dr. Krupa. Heal that person, Lord. Heal that person even now as I intercede, as I pray. May the healing anointing minister to that person's whole being. I pray for Brother Lalit Mehra. Heal his body, his father-in-law, his household, Lord. Healing anointing flow. तेरे मसा को, तेरी हजूरी को खोलते हैं. तेरी हजूरी, तेरी कुदरत तेरे लोगों को छुए खुदावन. हालेलुया. तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो खुदावन. तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो. हालेलुया. धन्यवाद यीशु मसीह के जलाली नाम में. आमीन. हालेलुया. सबको जय मसीह की. मैं एक बड़ा अद्भुत संदेश आपके साथ बांटना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ अपनी बाइबल खोलें और मेरे साथ निकालें यशाया नबी की किताब. यशाया नबी की पुस्तक निकालिएगा और उसका 6 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर नंबर 6. हालेलुया. यशाया 6 अध्याय. और जल्दी जल्दी मेरे साथ चलिएगा परमेश्वर के कलाम में. हालेलुया. आज शाम को 8 बजे भी एक मीटिंग है जो कि पास्टर कपिल शर्मा के फेसबुक पेज पे मैं जाके करूँगा. बहुत ज़बरदस्त एक संदेश. 8 से कल रात 8 से 9:30 बजे तक वो मीटिंग चली. बहुत लोगों ने आशीष पाई. मैं आपको लिंक भेजूंगा अभी इस मीटिंग के बाद, उस पर लॉगिन करना.
8 to 9:30 देयर विल बी अनदर सर्विस। तो अभी आप आइए परमेश्वर के कलाम में और निकालिए यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की पुस्तक निकालिए, उसका 6 अध्याय, उसका पहला वचन सुनिए। इन द ईयर दैट किंग उज्जाया डाइड आई सॉ ऑल्सो द लॉर्ड सिटिंग अपॉन ए थ्रोन हाई एंड लिफ्टेड अप एंड हिज ट्रेन फिल्ड द टेम्पल। यशायाह नबी एक दर्शन देखता है, अद्भुत दर्शन। यशायाह नबी अपनी सेवकाई में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, सेवकाई कर रहा है, लेकिन जिस साल ऊजा राजा की मृत्यु हुई उस साल उसने आत्मा की दुनिया में देखा, स्वर्ग खुला और स्वर्गीय दुनिया के अंदर नबी क्या देखता है? ए थ्रोन, द लॉर्ड सिटिंग अपॉन ए थ्रोन, यहोवा परमेश्वर, योड है वाव है, एक जबरदस्त थ्रोन के ऊपर बैठा है, सिंहासन पे बैठा है। और क्या लिखा? हाई एंड लिफ्टेड अप, अद्भुत है, बहुत ऊंचा है, शिरोमणि है वो सिंहासन जिस पे यहोवा परमेश्वर बैठा है। और यहोवा परमेश्वर ने जो रोब पहनी है, यहोवा परमेश्वर ने जो राजा की पोशाक पहनी है, उसका जो पल्लू है, पोशाक है बहुत लंबी, और उस पोशाक का पल्लू जो है, उस पल्लू से पूरी हैकल भर गई है। हालेलुया। आपको मालूम, यहोवा परमेश्वर सृष्टि का रचिता, जगत का स्वामी, वो राजा है जो हैकल के अंदर विराजमान है। हालेलुया। वो किसी साधारण महल के अंदर नहीं है, परमेश्वर की हैकल में विराजमान है। और उसका जो रोब है, शाही जो पोशाक है, उसका जो पल्लू है, वो इतना बड़ा है कि पूरी हैकल भर गई है। आपको मालूम, परमेश्वर की हैकल को कोई नहीं भर सकता सिवाय परमेश्वर के जलाल के। परमेश्वर की हैकल को सिर्फ परमेश्वर का रूह भर सकता है, परमेश्वर का आत्मा भर सकता है। परमेश्वर की हैकल को परमेश्वर का जलाल भर सकता है, परमेश्वर की शान भर सकती है, परमेश्वर की हजूरी भर सकती है। तो परमेश्वर की ये जो पोशाक है, जो परमेश्वर की रॉयल ड्रेस है, उसका जो पल्लू है, एप्रन है, उसी से पूरा हैकल भरा हुआ है। प्राचीन समय में क्या होता था? जो राजा होते थे, यशस्वी राजा, बड़े राजा, चक्रवर्ती राजा, एम्परर, वो राजाओं की पोशाक बहुत शाही होती थी और वो राजा युद्ध करते थे, संग्राम करते थे। जिस देश के राजा को हरा देते थे, उस राजा के राजपाट को अपने राज में मिला लेते थे और वो राजे उस जीते हुए राजा के अधीन हो जाते थे। तो राजा क्या करता था? सुनिए ध्यान से। उस राजा ने जो शाही पोशाक पहनी होती थी, उसका पल्लू का हिस्सा काटा जाता था और ये राजा जो जयवंत हुआ होता था, उसके पल्लू के साथ, उसकी पोशाक के साथ, उसके कोने के सिरे के साथ उसे स्टिच कर दिया जाता था। तो जिस राजा ने जितनी विजय हासिल की होती थी, जितनी जयवंत वो राजा होता था, जितना रण संग्राम में वो योद्धा होता था, उतनी ही लंबी चौड़ी उसकी पोशाक होती थी। तो यशायाह देखता है यहोवा को, यहोवा की पोशाक इतनी विराट है, इतनी विशाल है कि पूरी हैकल भर दी है। वचन में लिखा है, यहोवा इज अ मैन ऑफ वॉर, यहोवा परमेश्वर युद्ध करने वाला योद्धा है। हालेलुया। और उसने अपने शत्रुओं को महासमुद्र में डुबो डाला है। यहोवा ने कभी कोई संग्राम खोया नहीं, यहोवा ने कभी कोई युद्ध में पराजय हासिल नहीं की। यहोवा की पोशाक जलाली है, यहोवा का जो शाही पोशाक है, उसका पल्लू इतना बड़ा है, वो विजयी है, सदैव जयवंत है। हालेलुया। महाप्रतापी है, यशस्वी है। हालेलुया। कीर्ति यश से भरा हुआ है। उसको मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं, उसे मनुष्यों की ज़रूरत नहीं। आपको मालूम, जब यहोवा परमेश्वर ब्रह्मांड को रचने लगा, उसे किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई कुशल से कुशल कारीगर भी हो, किसी चीज़ को अगर बनाएगा, उसे रॉ मटेरियल चाहिए। यहोवा को किसी पदार्थ की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहोवा को किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहोवा ने किसी की सलाह नहीं ली, यहोवा का कोई साथी नहीं हुआ, किसी ने यहोवा को योजनाएं नहीं बताई, किसी ने यहोवा को कोई सम्मति नहीं दी, ज्ञान नहीं दिया, यहोवा के साथ विचार विमर्श नहीं किया। उसने अपने ही अपरंपार बुद्धि से, अपने अगम्य ज्ञान से, अपनी विराट सामर्थ्य और शक्ति से, अपनी
अगम्य बुद्धि के द्वारा आकाश और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। इस ब्रह्मांड में जो आपको दिखाई देता है वो, और जो दिखाई देता है उससे कई लाख गुना वो है जो आपको दिखाई नहीं देता। दृश्य और अदृश्य संसार उसने अपनी बुद्धि के द्वारा रचे। उसको किसी मनुष्य की सलाह की जरूरत नहीं, उसको किसी मनुष्य के साथ परामर्श करने की जरूरत नहीं। He just stood up by himself. He just stood up in himself. He just created everything. He just doesn't need anything from anyone. यहोवा को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप यहोवा को कुछ नहीं दे सकते, मैं यहोवा को कुछ नहीं दे सकता। हालेलुया। वो महाप्रतापी है, वो जो चाहे वो करता है। हालेलुया। वो इम्यूटेबल है, वो कभी बदलता नहीं। मलाकी 3:6 में लिखा है वो कभी बदलता नहीं, वो हमेशा यकसा रहने वाला परमेश्वर है। और प्रेरित पौलुस कहता है रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 35 वचन से लेकर 39 वचन तक, वो बहुत सारी चीजें गिनवाता है कि मृत्यु, अकाल, भूकंप, भूचाल, अंधकार, ज्योति, स्वर्गदूत, बदरुएं, नरक, ऊंचाई, गहराई, भूखमरी, मृत्यु, कौन हमें यहोवा के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई सामर्थ हमें उसके महाप्रतापी हाथों से खींच नहीं सकती। हालेलुया। वो इतना महान है। वचन में लिखा है गॉड इज ऑल सफिशिएंट। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, आप उसे कुछ सप्लाई नहीं कर सकते। ही डजंट नीड योर ऑफरिंग, ही डजंट नीड योर टाइद, ही डजंट नीड योर वर्शिप। ही इज नॉट अ वर्शिप हंग्री गॉड। यू कैनॉट गिव हिम एनीथिंग फ्रॉम दिस प्लेनेट। एनीथिंग दैट विल असेंड टू हेवन विल बी एब्सोल्युटली पोल्यूटेड। पृथ्वी से अगर कोई चीज स्वर्ग में पहुंचाई भी जाए तो वो कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ग की सड़कें कुंदन सोने की बनी है और स्वर्ग की बुनियाद हीरे मोती जवाहरातों से जड़ी है। कौन सी चीज ऊपर भेजेंगे आप यहोवा को? ही डजंट नीड एनीथिंग। हालेलुया। वचन में लिखा है यूहन्ना 5:26 में, गॉड हैज लाइफ। जीवन का स्रोत यहोवा है। जोए काइंड लाइफ, कभी ना समाप्त होने वाला अनंत अमोघ जीवन यहोवा में से निकलता है। हालेलुया। और वो जीवन उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है, वो जीवन हमें देने का। हालेलुया। परमेश्वर के पास अगम्य बुद्धि है। परमेश्वर के पास अथाह खजाने हैं जो कभी खत्म नहीं होते। परमेश्वर भलाई, करुणा, दया और सामर्थ से भरा है। हालेलुया। उसकी बुद्धि अमोघ है, उसका ज्ञान मनुष्य की समझ से परे है। मनुष्य उसके कामों की था नहीं पा सकता। परमेश्वर को जानना तो मनुष्य के वश की बात नहीं, उसके कामों की ही था मनुष्य नहीं पा सकता। वो अपने वजूद में कायम रहता है, उसको रहने के लिए जगह की जरूरत नहीं। स्वर्ग भी परमेश्वर ने बनाया है, स्वर्ग बनाया है। किसी समय उसने स्वर्ग बनाया होगा, मुझे नहीं मालूम कब। परमेश्वर स्वर्ग के बनाए जाने से भी पेशतर है, पहले है। जब उसने स्वर्ग नहीं बनाया था तो परमेश्वर कहाँ रहता था? वो अपने वजूद में रहता है, स्वयंभू है, अपने आप में है यहोवा परमेश्वर। वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। भजन 33:6 वचन पढ़ें कि उसने अपने मुंह के शब्द के द्वारा ब्रह्मांडों को रच दिया है, दृश्य और अदृश्य संसार को। वचन में लिखा उस सामर्थ के द्वारा, इफिसियों की पत्री 3:20 में, एक्सीडिंगली ग्रेट एंड अबंडेंट पावर दैट वर्केथ इन अस, ही कैन डू एनीथिंग। वो अमोघ, वो अप्रत्याशित, वो मनुष्य की बुद्धि से परे असीमित सामर्थ जो काम करती है, उसके द्वारा वो जो चाहे वो करता है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है। अय्यूब 11 के 7 से 11 वचन आप पढ़ेंगे, उसके भेद अगम्य हैं। उसकी ऊंचाइयों को कोई माप नहीं सकता, उसकी गहराइयों को कोई जान नहीं सकता, उसके कामों की था मनुष्य अपनी संकीर्ण बुद्धि से पा नहीं सकता। भजन 24:8 में लिखा है वो शक्तिमान है, वो सामर्थी है। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। उत्पत्ति 18:14 में परमेश्वर कहता है हमारी माता सारा से, क्या यहोवा के लिए कोई काम नामुमकिन है? कोई काम मुश्किल है यहोवा के लिए? एब्सोल्युटली नथिंग। जर्मिया 32:17 और 32:27 पढ़िएगा। यहोवा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। यही शब्द आके जिब्राइल फरिश्ता माता मरियम से कहता है लूका 1:37 में, क्या यहोवा के लिए कोई काम मुश्किल है?
यहोवा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं, वो जो चाहे वो करता है, उसकी सम्मति, उसकी बुद्धि, उसकी ज्ञान के अनुसार सब कुछ होता है। हालेलुया। वो इतना विराट है, लेकिन फिर भी हम जैसे तुच्छ लोगों को वो अपने पुत्र और पुत्रियां बनाता है, वो भी अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू का दाम देके। हालेलुया। कितना महान है परमेश्वर का प्यार, जिससे वो हमें प्रेम करता है। उसके पास सारा अधिकार है। He possesses all authority. 2 Corinthians 6:18, Revelation 1:8, He has all the power. He has the keys in His hand. यशाया 46 के 9 और 10 में लिखा है, God is all knowing. उसको सब कुछ मालूम है। उसका ज्ञान मनुष्य उसकी था नहीं पा सकता। वो सब जगह है। ज़बूर 139 के 7 से 10 में राजा दाऊद कहता है, मैं तेरी हुजूरी से कहाँ भागूं? अगर मैं पताल में भी जाऊं तो पताल में भी तू मुझे ढूंढ लेता है। अगर मैं सितारों में जाके अपना बिछौना करूं, तेरा हाथ वहां से मुझे उतार लेगा। तेरे लिए तारीकी या अंधेरा अंधेरा है ही नहीं खुदावंद। अंधेरा तेरे आगे अंधेरा नहीं रहता। हालेलुया। मैं कहाँ जाऊं तेरी हुजूरी से बच के? कहाँ छिपूं खुदावंद? तेरे प्रताप, तेरी महिमा से छिपके तू हर जगह है। वचन में लिखा है रोमियो 11 के 33 में, वो बुद्धि का स्रोत है, अगम्य ज्ञान का स्रोत है। व्यवस्था विवरण 7 के 9 में लिखा है, वो वफादार है। हालेलुया। वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। मनुष्य धोखा देते हैं, मुझे बहुत मनुष्य ने धोखा दिया। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में अपना प्रेम बोया, अपना समय बोया, मैंने पैसा बोया, मैंने अपने घर में रखा कई सेवकों को, उनको तैयार किया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। लेकिन प्रभु मुझे कहता है, मैंने कभी तुझे धोखा ना दिया, ना तुझे कभी धोखा दूंगा। हालेलुया। डिट्रोनमी 7 के 9 में, व्यवस्था विवरण 7 के 9 में लिखा है, यू कैन रिलाई ऑन गॉड ब्लाइंड फोल्डेडली, ही विल नेवर एवर बिट्रे यू। वो वफादार खुदा है। हालेलुया। वचन में लिखा है 2 तिमोथियस 2 की 13 में, हम जब बेवफा भी हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा। इतना महान परमेश्वर। वचन में लिखा है, उसकी चोगा, जो उसका जो क्लोक है, रॉयल रोब है, उसके सिरे से ब्रह्मांड भरा हुआ है। आपको मालूम हिब्रू वर्ड है शुल। परमेश्वर की पोशाक के कोने के लिए वर्ड है शुल, जहां से शॉल शब्द निकला। शॉल देखा आपने जो स्त्रियां लेती हैं, हिब्रू वर्ड है शुल। ट्रेन, द ट्रेन ऑफ द रोब ऑफ द लॉर्ड फिल्स द एंटायर टेम्पल। आपको मालूम, जो महायाजक होता था उसकी पोशाक कितनी, मैंने शायद आपको बताया, महायाजक की पोशाक इतनी इलाही होती थी कि जब तक महायाजक ने पोशाक पहनी है महायाजक की, वो मर नहीं सकता, उसे मौत छू नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर मूसा से कहता है, अपने भाई हारून की पोशाक उतार ले, क्योंकि अब उसके मरने का वक्त आ गया। अगर हारून पोशाक पहने रहता वो मरता नहीं। हालेलुया। उसकी पोशाक कितनी अद्भुत है। आपको मालूम, यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया और यीशु मसीह जा रहा था, एक भीड़ उसके पीछे जा रही थी। एक स्त्री थी जिसके जीवन में कोई आशा नहीं थी, उसने अपना धन खो दिया था डॉक्टरों पे, उसकी जवानी चली गई थी, उसे खून बहता रहता था। उसने अपने दिल में सोचा, मैं जा स्वामी की, जो सृष्टि का रचिता है, इसकी रोब के सिरे को पकड़ूंगी ऐसे और मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु मसीह की रोब के सिरे को पकड़ा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 20 और 21 वचन पढ़ लीजिएगा। मत्ती 9 और 21। उसने जाके पीछे से चुपके से यीशु मसीह के चोगे के सिरे को छू लिया, क्योंकि इस स्त्री को आज्ञा नहीं थी, क्योंकि वो अनक्लीन थी, अशुद्ध थी। उसके लिए ये अच्छी बात नहीं थी कि वो पुरुषों के अंदर जाए, लेकिन वो फिर भी गई। वचन में लिखा है, शी टच्ड द hem of his walking, she privily went and touched, she clutched the hem of his garment. मत्ती 9 के 20 में लिखा है। क्रेस्पिडोन ग्रीक वर्ड है, क्रेस्पिडोन। ऐसे जब उसने छुआ, उसने अभी उसके अंदर से अभिषेक निकला। हालेलुया। और उसके जिस्म के अंदर समा, तुरंत वो औरत चंगी हो गई। यू नो व्हाट जीसस सेड? जीसस सेड, वर्च्यू हैज गॉन आउट ऑफ मी। वर्च्यू, प्योरिटी, morality, integrity, the virtue of a chaste man just flowed out of Jesus's body and entered into the body of this woman, and she was instantaneously made whole. उसी घड़ी वो चंगी हो गई।
अगर आप पढ़ेंगे ना की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसके 37 से 41 वचन को, नीले रंग के महायाजक के चोगे के नीचे नीले नीले रंग के टैसल होते थे। नीला रंग स्वर्ग को दिखाता है, ब्लू हेवन, स्वर्ग का प्रतीक है नीला रंग। नीले रंग के टैसल्स होते थे, उसको उसने ऐसे कस के पकड़ा। यहोवा का अभिषेक उसके, यहोवा के पुत्र यीशु मसीह के वस्त्रों में से निकल के उसके शरीर में चला गया और वो उसी समय चंगी, उसकी अशुद्धता चली गई, उसकी गंदगी, वो बदरू जिसने उसे रोगी किया था वो निकल गई, वो अधर्म, वो श्राप जिसकी वजह से उसको लहू बहता था, वो श्राप उसी समय टूट गया और वो चंगी होगी। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर का ये भक्त है यशायाह, जिस वर्ष ऊजा राजा मरा है। कौन मरा है? ऊजा राजा। अब मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ, मेरे संग जल्दी से निकालिए। आप आइए 2 क्रॉनिकल्स में आइए, दूसरा इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास, उसका आप 26 अध्याय निकालें। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 26, दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय। सुनिए ध्यान से क्या लिखा है, पहले वचन से पढ़ता हूँ, सुनिए। दूसरा इतिहास 26 अध्याय का पहला वचन। देन ऑल द पीपल ऑफ जूडा टुक उज्जाया who was 16 years old and made him king in the room of his father Amaziah. He built Eloth and restored it to Judah after that the king slept with his fathers. 16 years old Uzziah when he began to reign, and he reigned 52 years in Jerusalem. His mother's name was Jecoliah of Jerusalem, and he did which was right in the sight of the Lord according to all his father Amaziah did. उजा जो राजा है, ये छोटी उम्र में 16 साल की उम्र में राजा बन गया, और इसका पिता एक अच्छा राजा था। जब ये राजा बना, ये यहोवा के मार्गों पे चला, इसने अच्छे काम किए जो यहोवा ने आदेश दिए थे। 5 वचन। एंड ही सॉट गॉड इन द डेज ऑफ जकरिया। जकरिया नबी था उन दिनों में, और जशाया भी नबी था, दोनों नबी थे। जकरिया भी नबी था उन्हीं दिनों में, और जशाया भी नबी था, पैरेलल नबी हैं ये दोनों। परमेश्वर के महान संतों के छत्र छाया में ये यहोवा को ढूंढता था। उजा राजा, ही लिखा, ही डिड विच वॉज राइट अकॉर्डिंग टू ऑल हिज फादर, एंड ही सॉट गॉड इन ऑल द डेज। 5 वचन। ही सॉट गॉड इन ऑल द डेज ऑफ जकरिया हु हैड अंडरस्टैंडिंग इन द विजन्स ऑफ गॉड एज लॉन्ग एज ही सॉट द लॉर्ड गॉड मेड हिम टू प्रॉस्पर। फ्रेज लिखी है यहाँ पे, जब तक उसने यहोवा को ढूंढा। जकरिया स्पिरिचुअल अथॉरिटी था एक, जशाया भी स्पिरिचुअल अथॉरिटी था। ये जवान 16 सालों का राजा यहोवा को ढूंढता है 16 साल की आयु में। ही इज आफ्टर गॉड, ही इज सीकिंग गॉड, ही इज सीकिंग द वेज ऑफ गॉड, ही वॉन्ट्स टू लिव आउट द वर्ड ऑफ गॉड, ही keeps Torah in his heart, he wants to walk in the ways of God, he wants to lead the whole nation in the path of the Lord. उजा राजा यहोवा का खोजी है। जब तक उसने यहोवा को खोजा, तब तक यहोवा ने उसको बरकत दी। जब तक आप यहोवा को खोजोगे, यहोवा आपको बरकत देगा। वचन में लिखा, अगर तुम यहोवा के संग चलोगे, वो भी तुम्हारे संग चलेगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे, वो भी तुमको त्याग देगा। यदि तुम उसकी खोज में रहो, रोज वो तुमसे मिला करेगा। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए। हाँफता जूते परमेश्वर यहोवा का प्यासा हूँ। जैसे हिरनी नदी, उसने युद्ध किए, यहोवा ने उसको विजय दी। पढ़ लीजिएगा पूरा अध्याय ये। यहोवा ने उसको आशीषित किया, यहोवा ने उसको बरकत दी। अब इसका पढ़ें 16 वचन। यहोवा लड़ाई के मैदान में गया, उसको बरकत दी, दूसरे राजाओं को झुका दिया उसके आगे। वो बलशाली हुआ, सामर्थी हुआ, उसने लूटा, उसके खजाने बड़े, बहुत धनी हुआ, उसका यश बढ़ा, उसका वैभव बढ़ा। बट कम टू वर्स नंबर 16। बट व्हेन ही वाज स्ट्रांग, जब अचानक वो बहुत बड़ा हो गया। ये बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूँ। फेम, मनी, सोना चांदी, संसार की चीज़ें, इनकी एक इनके पास एक ढंग है आपके दिल को खींचने का।
और यहोवा से दूर करने का। नथिंग रॉन्ग विद मनी, बट प्रॉब्लम इज विद ह्यूमन हार्ट। तो जैसे लिखा है व्हेन ही वाज बट व्हेन ही वाज स्ट्रांग हिज हार्ट वाज लिफ्टेड अप टू हिज डिस्ट्रक्शन। उसका दिल कैसे भर गया? घमंड से भर गया। आपको मालूम भाई और बहनों, सबसे खतरनाक है रूहानी घमंड, जो अक्सर आप बोलते हो। मैंने कितनी बड़ी मेरी सेवकाई है, इतने हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं, वो पास्टर तो थोड़े थोड़े पास्टरों को प्रचार करते हैं, मैं तो हज़ारों को करता हूँ। मुझे तो ज़रूरत नहीं लोगों को बोलने की, किसी को जवाब देना, तो बहुत बड़ा हूँ। मुझे आप पापा डैडी कह सकते हो, क्योंकि मुझे तो राइट मिला है। मैंने तो कितना कुछ अकॉम्प्लिश किया है। समझ लीजिए वो आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसका नाम हीलियल है, जिसे लूसीफर कहा गया है, हसथान कहा गया है। वो उठा रहा है आपको, अंदर से उठा रहा है आपको। आप संसारिक चीज़ों को देख रहे हो, संसारिक चीज़ों को जो आपने इकट्ठा कर लिया उसे अपनी कामयाबी समझ रहे हो। बहुत से लोग जो आपके संग जुड़ गए उसको आप बड़ी कामयाबी समझ रहे हो अपनी। धोखा मत खाना। यीशु मसीह के लिए भीड़ कपड़े उतार के रख रही थी, खजूर की टहनियाँ रख रही थी। कुछ दिन के बाद वही भीड़ पिलातुस के प्रिटोरियम में जाके कह रही थी, इसको क्रूस चढ़ाओ, बराबा को हमारे लिए छोड़ दो। यीशु मसीह को छोड़ के किसी और को अपनी चट्टान मत बनाना। मनुष्यों पे भरोसा मत करना, बहुत बड़ा धोखा खाओगे। पॉपुलैरिटी, फेम, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री, ये सब गार्बेज है, छोड़ दो इसे। ये लिखा है, बट व्हेन ही वाज स्ट्रांग हिज हार्ट वाज लिफ्टेड अप टू हिज डिस्ट्रक्शन। He became arrogant, he became proud, and destruction came. For he transgressed against the Lord his God and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. घमंड कैसे आया? यहोवा की हैकल में चला गया। क्या करने? मैं यहोवा को धूप चढ़ाऊंगा। याजक की नहीं मानी उसने। क्या लिखा है यहाँ पे? एंड अजराया द प्रीस्ट वेंट इन आफ्टर हिम एंड विद him 80 priests of the Lord that were valiant men, and they withstood Uzziah the king and said unto him, It appertaineth not unto thee, Uzziah, to burn incense unto the Lord, but to the priest, the sons of Aaron that are consecrated to burn incense. Go out of the sanctuary, for thou hast trespassed, neither shall it be for thine honor from the Lord. Then Uzziah was wroth, and he had a censer in his hand to burn the incense, and while he was wroth with the priest, the leprosy even rose up in his forehead. राजा घमंड से भर गया है, भूल गया वो दिन। कभी प्रभु को ढूंढते थे आप, साइकिलों पे जाते थे, मोटरसाइकिलों पे घूमते थे। अब आपके हंचोस घूमते हैं, बॉडी गार्ड्स घूमते हैं संग में, बहुत पैसा है, बहुत कुछ है। अब आपको छोटे लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी मीटिंग में आप जाते नहीं हो। देखिए शैतान कैसे काम करता है, कैसे गरूर लाता है धीरे 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 धीरे। ये राजा कभी यहोवा का खोजी था, छोटी उम्र से ढूंढता था उसको। पैसा आया, शोहरत आई, युद्ध जीत गया, यहोवा ने जिताए युद्ध। यश बढ़ गया, महिमा बढ़ गई, धन बढ़ गया, गरिमा बढ़ गई, वाहवाह होने लगी, फेम बढ़ गया, तो घमंड आ गया, मैं चढ़ाऊंगा यहोवा के आगे जाके। तो ये सच्चे याजक थे यहोवा के, उन्होंने रोका राजा को, तू ये काम नहीं कर सकता, ये याजकों का काम है, हम करेंगे, हारून के बेटे करेंगे। लेकिन राजा ने उनकी मानी नहीं। जैसे यहोवा के आगे गया, गुस्से में आ गया। यहोवा को धूप चढ़ाने जा रहा है, कहाँ पे? होली प्लेस में। जो इंसेंस की ऑल्टर होती है सोने की होती है, होली प्लेस में होती है, वहाँ नहीं जा सकता राजा। वहाँ केवल याजक जाते हैं और महायाजक जाता है। महायाजक यहाँ तक जाता है, महायाजक साल में एक दिन। याजक जो होते हैं यहाँ तक जाते हैं, जहाँ यहीं पे होती है ऑल्टर ऑफ इंसेंस। राजा यूजर्प कर रहा है उस अथॉरिटी को जो याजकों को दी गई है। तो क्या हुआ? उसके मत्थे पे कोढ़ निकला। हालेलुया। लिखा है, लेप्रोसी इवन रोज अप इन हिज फोरहेड बिफोर द प्रीस्ट इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड एंड बिसाइड द इंसेंस ऑल्टर। वो जहाँ खड़ा था उस सोने की धूप दान पे धूप चढ़ाने के लिए, वहीं कोढ़ निकला उसके याजकों के सामने। और क्या लिखा है? एंड अजराया द हाई प्रीस्ट एंड ऑल द प्रीस्ट लुक्ड अपॉन हिम एंड बिहोल्ड ही वाज लेप्रस
in his forehead, and they thrust him out of thence. Yea, himself hasted also to go out, because the Lord had smitten him. वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ राजा, क्योंकि यहोवा ने मारा उसे, यहोवा ने मारा। देखिए, जो प्रभु को कभी ढूंढता था, प्रभु के पीछे चलता था, प्रभु ने धन दिया, दौलत दिया, यश दिया, महिमा दी, लड़ाइयों में विजय दिलवाई, बड़ा राजा बन गया, घमंड आ गया। देख रहे हैं आप, कोड से भर गया। और क्या लिखा है, एंड उजा द किंग टू द डे ऑफ हिज डेथ। 21 वचन में लिखा है, प्रभु ने उसे चंगा नहीं किया, प्रभु ने उसे क्षमा नहीं किया, जब तक मरा कोढ़ी रहा। dwelt in several house being a leper, for he was cut off from the house of the Lord. यहोवा के भवन से काट दिया गया। एंड जोथाम his son was over the king's house judging the people of the land. किसी और जगह जाके रहता था। जब कोढ़ी राजा मर गया, तब यशायाह को दर्शन मिला। कब मिला? जब कोढ़ी राजा मरा। जब तक कोढ़ है ना, रूहानी कोढ़, तब तक यहोवा दिखाई नहीं देगा आपको। पाप का आज कोढ़ ऐसे नहीं निकलता मत्थे पे, खलड़ी में नहीं निकलता, अंदर होता है लोगों के, विश्वासियों के, पास्टरों के। कोढ़ है कई तरह का, घमंड का कोढ़ है, गुरूर का कोढ़ है, धन के लोभ का कोढ़ है, अपने आप को बड़ा बनाने का, दिखाने का, फोकी झूठी महिमा लेने का, फरीसियों वाली, लोगों के बीच में खड़े हो के रब्बी कहलवाने का, पापा डैडी कहलवाने का, ये कोड है। जब तक ये नहीं जाएगा, तब तक यहोवा दिखाई नहीं देगा। यहोवा की पोशाक जिससे हैकल भरी है। यहोवा क्या दिखाता है? यशायाह को, राजा कोढ़ी है, राजा के कोढ़ फूटा है। यशायाह को यहोवा दिखाता है, राजा मैं हूँ। ऊजा राजा के कोढ़ है, कोई बात नहीं, उसको मार दिया, मर गया वो। यहोवा बताता, असली राजा तुम्हारा मैं हूँ, और देख मेरी पोशाक कितनी विराट है, मैं सबके ऊपर विजयी हूँ, मैं सबके ऊपर जयवंत हूँ, मैंने सबको हराया है, हालेलुया। और मेरी पोशाक का पल्लू जो है वो पूरे ब्रह्मांड को भर देता है, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। आपका और मेरा परमेश्वर कितना महान है। उसे हमारी सहायता की ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, हालेलुया। वो सब कुछ करने की कुदरत खुद रखता है, हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ वचन आपको देना चाहता हूँ, पढ़िए मेरे साथ, हालेलुया। इसका बाकी हिस्सा मैं अभी, बाकी हिस्से में नहीं जाना चाहता, मैं कुछ और आपको वचन देना चाहता हूँ, पढ़ें मेरे साथ। एक वचन और पढ़ लें पहले हम, 22 वचन पढ़ देता हूँ अभी आपको, जो जहाँ से छोड़ा उसका अगला वचन, 2 Chronicles 26 and 22. Now the rest of the acts of Uzziah, first and the last, did Isaiah the prophet, the son of Amos, write. So Uzziah slept with his fathers, and they buried him with his fathers in the field of the burial which belongeth to the kings, for they said, he is a leper, and Jotham his son reigned in his stead. कोढ़ी होकर मर गया वो। कभी प्रभु के पीछे चलता था, कभी प्रभु के यश गाता था, प्रभु की महिमा करता था, प्रभु उसे जीत पे जीत देता था, प्रभु उसके मान सम्मान यश को बढ़ाता था, प्रभु उसके दुश्मनों को उसके आगे दबा देता था। वो प्रार्थना करता था, प्रभु सुनता था। लेकिन धन दौलत, सोना चांदी, हीरे मोती, महिमा जो मिली, यश जो मिला, जो नाम हुआ, फेम हुआ, घमंड से भर गया। बचाइए अपनी आत्मा को, अपने हृदय को। मत कीजिए गुरूर संसारिक चीज़ों पे, मत भागिए संसारी चीज़ों के पीछे। झूठे प्रचारक हैं जो आपको ये झूठा प्रचार बताते हैं कि जितनी आपके पास संसारिक चीज़ें हैं उतने ही आप आशीषित हो। वचन ऐसा नहीं कहता, हालेलुया। वचन ये नहीं सिखाता। आपको मालूम, वो लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में से वचन लेते हैं, प्रॉस्पेरिटी कल्ट वाले,
कि जितनी ज़्यादा दौलत, बड़ा बीज, बड़ी बरकत, बड़ा अमीन, बड़ी बरकत वाले, वो एक वचन देते हैं। मैं आपको वचन दिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं इसके अगले सेक्शन में जाना चाहता था, लेकिन अभी मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि इसको अभी रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इसका अगला सेशन करेंगे। मैं एक वचन आपको देना चाहता हूँ। हालेलुया। पढ़िए यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पत्री। हालेलुया। यूहन्ना की पत्री जो आखिरी पत्री है, थर्ड एपिसल ऑफ जॉन, एंड लेट मी रीड इट फॉर यू। Beloved, I wish above all, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Now, the prosperity cult guys took this scripture out of context, and they taught people that it is God's will for you to prosper financially, that God wants everybody to be filthy rich. Lekin when you dig this scripture into the original Greek text, you will be awestruck to see what the real truth that John has written in the original Koine Greek. क्या कहता है? कहता है कि तेरी जान दैट यू में प्रॉस्पर, यहाँ से प्रॉस्पेरिटी की टीचिंग निकालते हैं कि तू खुशहाल हो, उन्नति करे। तो प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको मालूम वर्ड क्या है यहाँ पे जो यूहन्ना लिखता है? ग्रीक वर्ड है होडू, जिसका मतलब पता आपको मालूम क्या है? यीशु मसीह कहते हैं ग्रीक में, आई एम दी होडू, मैं रास्ता हूं। तो जो प्रॉस्पेरिटी के लिए वर्ड है वो है मार्ग। मार्ग, उसके आगे वर्ड लगा है वेल, अच्छा, गुड वे। प्रॉस्पेरिटी का मतलब वेल वे, वेल पाथ। तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं स्ट्राइव टू एंटर थ्रू द नैरो पैथ, स्ट्राइव टू एंटर थ्रू द नैरो वे, फॉर ब्रॉड इज द वे दैट लीडeth unto डिस्ट्रक्शन एंड नैरो इज द वे दैट लीड्स unto लाइफ। आपको मालूम, यीशु मसीह यहां पे वचन में लिखा है वेल वे। यीशु मसीह कहता मार्ग मैं हूं, यहां पे लिखा वेल वे, अच्छा मार्ग, प्रॉस्पेरिटी के लिए। यीशु मसीह कहते हैं मार्ग मैं हूं, और यीशु मसीह कहते हैं तंग मार्ग से, स्ट्राइव टू एंटर थ्रू द नैरो वे। एंड द वर्ड फॉर नैरो वे इज थलीबो, थलीबो होडू। थलीबो का मतलब क्या है? थलीबो का मतलब है कष्ट, दुख, स्क्वीज किया जाएगा आपको, प्रेस किया जाएगा वहां पे। वो मार्ग है जहां पे आपको क्रूस उठा के जाना पड़ेगा। ये वो मार्ग है जहां पे आपको अपनी शरीर की अभिलाषाओं को मारना पड़ेगा, शरीर के कामों का दमन करना पड़ेगा। ये वो मार्ग है जहां पे आपको क्रूस लेके उठा के जाना पड़ेगा, डेली क्रूस को डिनाई नहीं कर सकते आप। क्रूस को लेके क्रूसित जीवन जीना पड़ेगा और तंग पथ में से होके गुजरना पड़ेगा। ये है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी है तंग मार्ग में, सकरे मार्ग में, चौड़े मार्ग में प्रॉस्पेरिटी नहीं। आपको मालूम, आप पूरी दुनिया में देखें, पूरी दुनिया के अंदर, ब्रिटेन में देखें, इंग्लैंड में ब्रिटेन में देखें, अमेरिका में देखें, यूरोप के कई कंट्रीज़ में देखें, वहाँ पे सड़कों के नाम, फेमस सड़कों के नाम क्या रखे होते हैं? न्यूयॉर्क में है ब्रॉडवे, चौड़ा मार्ग। क्यों उसे ब्रॉडवे नाम दिया गया 17-18 सेंचुरी में? क्योंकि वहाँ पे वो जो रोड है वहाँ पे वेश्याएँ रहती थी और फैशन इंडस्ट्री के गंदे घिनौने काम होते थे वहाँ पे, इसलिए उन पथ को कहा गया ब्रॉडवे नाम रखा गया। ये नैरो वे वाले मार्ग पे जाने वाले। ओरिजिनल टेक्स्ट ये कहता है, लेकिन इसको स्पिन करते हैं झूठे पापा डैडी और झूठे अपोस्टल और झूठे प्रॉफिट, इसको ट्विस्ट करके लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या लिखा है। हालेलुया। तो प्रभु के सकरे मार्ग पे आइए। सकरा पथ आपको जीवन की ओर लेकर चलेगा, चौड़ा पथ मृत्यु की ओर ले जाएगा। कोड इंटरनल होगा, पता नहीं लगेगा। जब तक कोड रहेगा तब तक स्वर्ग नहीं खुलेगा।
तब तक यहोवा परमेश्वर ऊंचे सिंहासन पे बैठा दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब कोढ़ मर जाएगा तब स्वर्ग खुलेगा, तब दर्शन शुरू होंगे, तब यहोवा परमेश्वर स्वर्गीय भाषा में बातें करेगा, दर्शन देगा, यहोवा का स्वरूप दिखाई देगा और यहोवा कहेगा मैं राजा हूँ, मैं महाप्रतापी हूँ, मैं यशस्वी हूँ, मैं सामर्थी हूँ, मैं हर युद्ध जीतूंगा, तू मुझ में विजयी होगा, मुझ में होकर तू सब कुछ कर सकेगा। हालेलुया। आइए यहोवा को अपनी ढाल बनाएं, यहोवा की ओर मुड़ें, तंग मार्ग से घुसें, यहोवा की ओर अपनी आंख निरंतर लगाएं, कहीं घमंड के कोड़ से मत भर जाना, दीनता के पथ पे चलना। प्रभु यीशु आप सबको बड़ी आशीष दे। आज रात को 8 बजे फिर मैं अभी आपको लिंक भेजूंगा अपनी फेसबुक पे, प्लीज़ उस लिंक को सबको पास ऑन करो और 8 o'clock मुझे ज्वाइन करना। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।